थोड़ा साइड कर दो। प्लीज मेंटेन द डेकोरम प्लीज। ठीक है ना? Now I request to all of you to stand for Kulgeet. क्या करना है? Please लगा लो इस पैर में। मैडम आप खड़े होना बस। आप बैठ रहे आप बैठ रहे आप बैठ रहे आप बैठ रहे आप बैठ रहे। बाबा मस्तनाथ की धरती स्थल मोहर में, बाबा मस्तनाथ की धरती स्थल मोहर में, विश्वविद्यालय जैसे कमल सरोवर में, इन्हीं योगियों की पीढ़ी में योगी से होना हुए, आयुर्वेद की ज्योति जलाकर श्रेय प्रिय के साथ हुए, योगी चांदनाथ के सत्कर्मों का पुण्य प्रताप यह सारा है। 2012 में स्थापित विश्वविद्यालय हमारा है, जो चाहो सो पाओ मन की दिव्य धरोहर में, एक विश्वविद्यालय जैसे कमल सरोवर में, बाबा मस्तनाथ की धरती स्थल मोहर में, एक विश्वविद्यालय जैसे कमल सरोवर में, अधुना प्रगति ज्ञान और टेक्नोलॉजी की शाखाएं, सब कुछ सुलभ यहाँ ग्लोबल दुनिया की विद्याएं, इनमें अनेक बने हैं विद्या के इस मंदिर में, एक विश्वविद्यालय जैसे कमल सरोवर में, बाबा मस्तनाथ की धरती स्थल मोहर में, एक विश्वविद्यालय जैसे कमल सरोवर में, आस्थाओं विश्वासों का शुभ कर्मों का संसार यहाँ, योगी बालकनाथ सरीखा भौगोलिक विस्तार यहाँ, संस्कार एक गोचर घोर अगोचर में, एक विश्वविद्यालय जैसे कमल सरोवर में, बाबा मस्तनाथ की धरती स्थल मोहर में, एक विश्वविद्यालय जैसे कमल सरोवर में। थैंक यू सर। अतिथि देवो भव, इसी भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं आज के दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे परम पूजनीय कुलाधिपति महेंद्र बालकनाथ योगी जी से कृपया वे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का पुष्प लेकर हार्दिक अभिनंदन करें। now I request to Honorable Pro Chancellor Ma'am Dr. Anjana Rao ji, please welcome to respected Dr. Sudesh Dhankar Ma'am. Please clap. अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे परम सम्माननीय कुलाधिपति महेंद्र बालकनाथ योगी जी से कि वे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का स्वागत करें। अब मैं पुनः अनुरोध करूंगी हमारे परम सम्माननीय कुलाधिपति महेंद्र बालकनाथ योगी जी से कि वे हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री माननीय चौधरी कंवरपाल जी का सम्मान करें। Now I request to Honorable Vice Chancellor Sir Dr. R.S. Yadav ji, please welcome to our respected Chancellor Mahendra Balaknath Yogi ji. Please clap in. Now I
I again request to Honorable Vice Chancellor Sir Dr. R.S. Yadav ji, please welcome to our respected Co-Chancellor Dr. Anjana Rao ma'am. अपने अनुरोध करूंगी हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा जी से कि वे हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर R.S. यादव जी का सम्मान करें। Thank you, sir. Now I would like to invite our Honorable Vice Chancellor Sir Dr. R.S. Yadav, please come for welcome address to all dignitaries and request to Honorable Chancellor Sir to get the declaration of convocation open. Sir, please come. Very good morning to all of you. So I, on behalf of this university, welcome the Honorable Chief Guest, Sri Jagdeep Dhankar ji, Vice President of India, and Madam Dr. Mrs. Sudesh Dhankar ji, who have acceded to our request to be with us as a chief guest and special guest at this occasion. I also welcome the guest of honor, Sri Manohar Lal ji, Chief Minister Haryana, and Sri Kanwar Pal ji, Education Minister Haryana, for their gracious presence in this morning. I also welcome the Honorable Chancellor, Mahent Balaknath ji Yogi, and Honorable Pro-Chancellor, Dr. Anjana Rao ji. I also welcome the distinguished guest in the gathering, Member Rajya Sabha, Sri Pawar ji and Jangra sir, also the former Minister, Manish Grover ji, and MLAs from Rajasthan Assembly, and Vice Chancellor Professor Rajbir Singh ji, MD Rohtak, and other dignitaries in the audience. Sir, I also welcome to the member of governing body, Board of Management, Academic Council, Financial Committee, faculty members of the university, and candidates who are present here to receive degree and medal in this convocation. With this, now I request the Honorable Chancellor for declaring the convocation open. Thank you. Thank you, sir. It's my great pleasure to invite respected Vice President Sir Sri Jagdeep Dhankar ji to confer the degree of Doctor of Literature to Padam Shri and Padam Bhushan Vaidya Devendra Tribuna ji. Please, sir, come on stage. This degree is conferred on him in recognition of his long-standing contribution of Ayurvedic medicine in India and abroad. He has been associated with all important ministries and law-making bodies. He has also been president of All India Ayurvedic Conference and Association of Manufacture of Ayurvedic Medicine. He has been visitor to different universities and has been awarded highest degree by numerous universities in India. He has also been awarded Ayurvedic Kirti and National Dhanvantri Award. Now, I am announcing the name of the award of Now, I am announcing the name of award of PhD degree holders, students, which I am announcing the name. Please come on the stage. Vinod Kumar, Sunita Yadav, Pripti,
अंशुमन, जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। करताल ध्वनि से उत्साहवर्धन करते हैं। हेमंत गुप्ता, निधि, रेणुबाला, सोनिया शर्मा, सुमित्रा, आप इनका करतल ध्वनि के साथ आशा रानी, रेणु मल्हान, निधि शिरोन, अंशु अरोरा, प्लीज आप सभी इनका करतल ध्वनि के साथ सम्मान करें। नाउ आई एम अनाउंसिंग द नेम ऑफ मेडलिस्ट स्टूडेंट्स whose name is announced. Please come on the stage. Gaurav, नरेंद्र कुमार, रेणु, नेक्स्ट कीर्ति, नेक्स्ट तमन्ना, नेक्स्ट नेहा, तालियां नहीं रुकनी चाहिए।
Next, Rinku. Mohini. Next, Monica. Next, Sonam. Next, Vaishali. प्लीज करतल ध्वनि से इनका सम्मान करते रहें। Congratulations to all students. Thank you, sir. It is my great pleasure to invite Honorable Chancellor Mahant Balaknath Yogi ji, MP of Alwar, to address the convocation gathering. विश्वेश्वरूपम जगदीशरूपम धर्मर्गयूपम यतिवर्गे भूपम संसारे सारम त्रेतार्पे हारम श्री मस्तनाथम सतम नमामि। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। मैंने इतना ठहर के बोला था तो मैंने सोचा कि आप सोच लेंगे कि मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि समय काफी हो गया आपको बैठे हुए, लेकिन फिर भी एक ऊर्जा से, तन्मयता से और मन से बाबा का जयघोष लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उनका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। बोलिए महंत श्री श्रेयोनाथ जी महाराज की। बोलिए महंत श्री चांदनाथ जी महाराज की। मन बहुत प्रसन्न है, शब्द भी नहीं है कि किस प्रकार से माननीय उपराष्ट्रपति जी का हम स्वागत, अभिनंदन और साथ ही साथ उनके जो आने का एक कार्यक्रम आज अपने आप सबके इस तपोभूमि पर और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय पर उन्होंने आने का जो हमें ये अवसर दिया है, वास्तव में हम उनके कृतज्ञ हैं। हम आभारी हैं कि आपने हमारे इस विश्वविद्यालय और बाबा मस्तनाथ मठ प्रांगण में आपकी उपस्थिति हम सब के लिए अनुकरणीय है। ऐसे इस सुंदर मंच पर विराजमान हमारे भारत देश के हमारे उपराष्ट्रपति श्री
जगदीप धनखड़ जी और विशेष रूप से उनके साथ हम सबको आशीर्वाद देने पहुंची श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, और विशेष रूप से जिनके सानिध्य में महामहिम यहाँ पर आज पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम को भी आप ही के सानिध्य में, आप ही के मार्गदर्शन में और आप ही के कहे अनुसार ये कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित होने को जा रहा है। ऐसे हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, सदैव मेरा हम सब का मार्गदर्शन करने वाले, हर समय हमारे साथ खड़े होने वाले, ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी, उपस्थित यहाँ पर प्रो चांसलर जी और वीसी जी जो हमारे वाइस चांसलर जी, और साथ ही साथ में हमारे सामने विराजमान जिन्होंने यहाँ पर आकर हम सबको अनुग्रहित किया है, ऐसे हमारे रामचंद्र जागड़ा जी जो कि हमारे राज्यसभा सांसद हैं, श्री कृष्णपाल पवार जी वो भी राज्यसभा सांसद हैं, श्री मनमोहन गोयल जी जो कि हमारे मेयर हैं, और साथ ही साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे एमटीयू के वाइस चांसलर श्री राजवीर जी, और बाकी बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें से विशेष रूप से जिन्हें आज संस्था की ओर से सम्मानित करने का अवसर हम सबको मिला है, ऐसे हमें वैद्य श्री त्रिगुणा जी, अनिल अग्रवाल जी, वीएस राठी जी और हमारे नवीन जी, आप सभी की उपस्थिति हम सब के लिए बहुत ही आज हम सबको हर्षोल्लासित करती है कि आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इस अलौकिक क्षण के आप सब लोग गवाह बने हैं। आप सब ने यहाँ पर आने का हम सबको आपके प्रति सम्मान का हम सबको अवसर मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी का यहाँ पर आना ये वास्तव में एक चमत्कार से कहीं कम नहीं है। जब आपका नाम उपराष्ट्रपति के लिए चयन हुआ था तो अगले दिन मैं महामहिम से मिला था और मैंने निवेदन किया था, मेरे अंदर भाव आए कि मैं आपको आमंत्रित करूंगा यहाँ पर संस्था के अंदर कॉन्वोकेशन के दीक्षांत समारोह में आने का। मैं अगले दिन पहुंचा, आपने बहुत ही तन्मयता से, आत्मीयता से प्रेम किया मुझे और मुझे कहा कि आपने तो बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित रूप से मैं आऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि ये आपका हरियाणा का पहला कार्यक्रम सार्वजनिक होगा और साथ ही साथ में कॉन्वोकेशन का भी आपका पहला कार्यक्रम होगा। और बाबा ने हम सबको अवसर दिया कि आपके पद पर आने के बाद में ये पहला कार्यक्रम आपका हरियाणा का सार्वजनिक रूप से हुआ और साथ ही साथ में कॉन्वोकेशन का भी हुआ। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और आपने तुरंत प्रभाव से माननीय उपराष्ट्रपति जी को निवेदन किया और आपने यहाँ पर बुलाने का हमारा सहयोग किया। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हम सबको इस सेवा का अवसर दिया। ये बहुत सुंदर अवसर है कि आज एक माता के रूप में भी हम सबको आशीर्वाद देने पहुंची है हमारी माता श्री सुदेश धनखड़ जी, जो एक माता मात्र शक्ति का भी आशीर्वाद आप सब बच्चों को मिलेगा और निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और निश्चित रूप से आप भारत के उदय में आपका जीवन काम आएगा। साथ ही साथ में हर समय हम सबको सेवा के साथ में हमारा सहयोग करने वाले ऐसे कंवरपाल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी निरंतर हमारा इस संस्था के साथ में सहयोग रहता है। निरंतर उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मैं महामहिम जी आपसे कहना चाहूंगा कि सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की तपोभूमि है और ये संस्था 8वीं से निरंतर जनता जनार्दन की और राष्ट्र की सेवा के समर्पित है। आपने पूरनमल जी का नाम सुना होगा, भक्त पूरनमल जी का। आगे चलकर उनका नाम चौरंगीनाथ जी रखा गया और उन्होंने यहाँ सर्वप्रथम 8वीं शताब्दी में यहाँ पर धूना लगाकर तप साधना की। लगभग 17वीं शताब्दी में मस्तनाथ जी यहाँ पर, जो कि साक्षात भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के स्वरूप हैं, उन्होंने आकर पुनः इस स्थान को जीर्णोद्धार किया और पुनः यहाँ पर तप साधना कर इस पूरे क्षेत्र का कल्याण किया। और तब से लेकर अब तक निरंतर यह संस्था, ये मठ न केवल आध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्तर पर राष्ट्र की सेवा के लिए, और जो संस्था का एक मंत्र है विधेय जनसेनम, हम जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हुए इस संस्था ने निरंतर काम किया है। इस संस्था को आज इस स्तर पर लाने के लिए
मैं मानता हूं कि जो नाथ संप्रदाय के योगेश्वर हैं उन सबका भी भरपूर योगदान रहा है, क्योंकि क्षण इतना अच्छा है कि मन से सबका योगदान रहा है। और साथ ही साथ आसपास के सभी भक्तजन जो बाबा के लिए समर्पित हैं उन सबका भी पूज्य गुरु महाराज जी ने, मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम यहां पर जो भी कुछ कर रहे हैं केवल अपने गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर, और हमारा जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि उनके नाम को, बाबा के नाम को और भक्तों के विश्वास को हम निरंतर हिमालय की चोटाइयों पर बनाकर रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं आज आपके आने से। और इस समय पर पूज्य गुरु महाराज जी की याद भी मुझे खूब और इतना सुंदर अवसर है कि देखो आपका आना हुआ, और आप जैसे ही प्रांगण में प्रवेश किए तो वैसे इंद्र देवता ने भी हम सबको आशीर्वाद दिया है। और मैं मानता हूं कि बहुत शुभ है आपका आना, और निश्चित रूप से ये संस्था और हमारे संस्था के सभी छात्र छात्राएं, आप सब लोग यहाँ पर शिक्षारत होकर आगे बढ़े हैं, क्योंकि अब तक हमने 65 वर्षों में लगभग 50,000 से अधिक बच्चों को यहाँ पर शिक्षारत होकर देश की सेवा के लिए समर्पित किया है। आज वर्तमान में संस्था के अंदर 10,000 से अधिक बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, और स्कूल के अंदर भी लगभग 2500 की संख्या हमारे स्कूल के अंदर है। और ये सेवा और ये बच्चे हमारे और ये संस्था हमारी केवल और केवल राष्ट्र के हित में और समाज के हित में, समाज को समृद्ध और समाज को एक सभ्य समाज बनाने के भाव से और राष्ट्र की उन्नति के भाव से निरंतर काम करेंगे। क्योंकि निश्चित रूप से जो व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा लेकर जाता है, निश्चित रूप से उसके अंदर बाबा का आशीर्वाद और दिव्य अलौकिक शक्ति उसके अंदर विराजमान रहती है, और निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने जीवन में भी सफल होता है और राष्ट्र को भी आगे ले जाने का कार्य करता है। आप सभी बच्चों का, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, और निरंतर इसी प्रकार से आप राष्ट्र के और समाज के उत्थान में निरंतर अपनी ऊर्जा को लगाएं। इतना ही कहते हुए मैं पुनः माननीय अतिथि जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने आने का यहाँ पर हम सबको अवसर दिया, आपकी सेवा का हम सबको अवसर दिया। एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। बोलिए बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your motivational words. It is my great pleasure to invite Honorable Guest of Honor, Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal ji, for motivating us. Sir, please. भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी और साथ ही डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, जिन्हें सेकंड लेडी ऑफ इंडिया इस नाम से जाना जाता है, मेरे साथी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, मंच पर विराजमान इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय महंत बालकनाथ जी, कुलपति प्रोफेसर आर.एस. यादव जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर मनोज कुमार जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर अंजना यादव जी, हमारे सदस्य राज्यसभा श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, सदस्य राज्यसभा श्री कृष्ण पवार जी, उपस्थित डॉक्टर राजवीर जी,
वाइस चांसलर MDU डॉक्टर बहुगुणा जी, श्री मनमोहन गोयल जी, मेयर रोहतक, उपस्थित सभी अन्य सज्जन वृंद और आज के इस दीक्षांत समारोह में जो मेडल प्राप्त करने वाले, डिग्रीज प्राप्त करने वाले, ऐसे हमारे सभी शिक्षा प्राप्त करके जीवन में प्रवेश करने वाले हमारे छात्र बंधुगण, उनके अभिभावक, माता पितागण, पत्रकार छायाकार मित्रों, एक बहुत ही सुंदर अवसर है जब एक 3 दशक पहले ये जो विश्वविद्यालय है एक बीज के रूप में जिसका श्रीगणेश किया गया था महंत शरोनाथ जी द्वारा 1957 में, बल्कि ज्यादा ही हो गए, वो जो बीज है आज एक वट वृक्ष का रूप उसने लिया है। और इस वट वृक्ष में कितने ही युवकों ने अपने आप को शिक्षित करके दीक्षित होकर समाज सेवा में लीन किया है। मैं आज इस अवसर पर ऐसे सभी जो डिग्रियां और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जिनके लिए बड़ा खुशी और गौरव का दिन है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मान्यवर उपराष्ट्रपति जी, ये भी बहुत एक मेरे लिए खुशी का विषय है कि आप हरियाणा के पहले प्रवास में उपराष्ट्रपति बनने के बाद हरियाणा के दौरे पर आप आए। आपने सर्वप्रथम चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर सांपला में पुष्पार्पण किया, वहां प्रदर्शनी देखी और इस संस्थान के दीक्षांत समारोह में आप आकर के, मैं तो यही कहता हूं कि आप ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप केवल राजनेता नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री हैं। आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मेरा और मानव धनखड़ जी का परिचय एक 4 साल पहले जब हरियाणा के सारे घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे थे, उस समय आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे, तो इन विषयों पर चर्चा के लिए मुझे अवसर मिला जाने का। उस समय से ही जो मेरे अपने मन में जो विचार आया कि बहुत सुलझे हुए समस्याओं का किस प्रकार से निदान करना है, बड़ी एक स्पष्ट दृष्टि आपके पास रही है। और जब बंगाल के आप गवर्नर, राज्यपाल होकर के जब गए और जिस प्रकार के सारे विषयों को आपने ठीक ढंग से वहां टैकल किया, शायद ही कोई और कर सकता था। निश्चित रूप से आपकी इस योग्यता को देख करके ही देश के लोगों ने आपको उपराष्ट्रपति पद पर देखने की इच्छा की होगी। आप हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। आपका मैं बहुत बहुत हरियाणा की जनता की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा मैंने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में जितने भी विद्यार्थी आए हैं उनके लिए एक विशेष अवसर है। शिक्षा प्राप्त करना हमारे जीवन का एक अंग है, लेकिन शिक्षा के बाद अगली सीढ़ी पर चढ़ना, वास्तव में शिक्षा में सफल होना वो कोई उतना बड़ा महत्वपूर्ण भी नहीं है। हमको ज्ञान प्राप्ति अपने संस्थान से होती है, हम उसमें शिक्षा में अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता जो होती है दीक्षांत के बाद, जब हम समाज में जाते हैं और समाज में किस भावना से काम करते हैं, उसके अंदर सफलता कितने हम हुए, ये उसके बाद पता लगता है। हम यहाँ डॉक्टर्स की डिग्री लेकर के जा रहे हैं या अन्य डिग्री लेकर के जा रहे हैं, कहते हैं शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तुम शिक्षा लेने के लिए आए थे, दीक्षा के बाद हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं। इस क्षण को कभी ना भूले कि हम लोग एक अच्छे कार्य के लिए, एक स्वास्थ्य सेवा को देने के लिए समाज में जा रहे हैं। समाज के अंदर हर प्रकार का वर्ग है। वो जो बहुत ही संपन्न वर्ग है वो अपना इलाज कहीं भी करा सकता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग है, गरीब वर्ग है,
वो हमारी सेवा के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसके शरीर का स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें। उसमें चाहे वो आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की हो हमने, चाहे डेंटल की हो, नर्सिंग की हो, इंजीनियरिंग की हो, फार्मेसी की हो, फिजियोथेरेपी, कानून जैसी जितनी भी शैक्षणिक सुविधाएं हमको यहाँ मिल रही हैं, हमने कोई भी शिक्षा प्राप्त की सेवा से जाकर के और हम लोग इस काम को करें। ये जो शिक्षा संस्थान है, बाबा शरणनाथ जी के तो दर्शन मैंने नहीं किए, लेकिन बाबा जयनाथ जी के और फिर जैसे बालकनाथ जी जब इस संस्थान को संभाल रहे हैं, इतनी लगन इनमें मैंने देखी है, जिस लगन के कारण से इस संस्थान के साथ किस प्रकार का इनका जुड़ाव है, हमने देखा है कि बहुत लोग इतना भावुक हो गए। इन्होंने अपने सर्वस्व निछावर करके अपने जिसको कहना चाहिए खून पसीने से सींचते हैं, ऐसा सींच करके इस संस्थान को बड़ा करने में अपना सब कुछ लगाया हुआ है। बहुत बार हमारा इनका जो संबंध आता है, पहले सरकार के नाते आता था, अब जब से आप सांसद बने हैं तब से तो और भी हमारे घनिष्ठ संबंध हो गए हैं। तो आप इस संस्थान को जिस प्रकार से सींच रहे हैं, मैं प्रभु से कामना करता हूं कि संस्थान इसी प्रकार से दिन दोगुनी रात चौगुनी और उन्नति करता रहे। इस मठ का ध्येय वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा जान करके कि यहाँ का ध्येय वाक्य जो आपने बताया, विधेयम जन सेवनम, यानी विधायी कार्य करके, इसको रचनात्मक काम करके जन की सेवा के लिए हम लोग यहां से जाएं। यहाँ का जो ध्येय वाक्य है ये बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि शिक्षा में हरियाणा सरकार, भारत सरकार बहुत से पद उठा रही है और उनको हरियाणा में हम लागू कर रहे हैं। खास करके जब से ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP आई है, इसको लागू करने के लिए वैसे केंद्र सरकार की ओर से निर्देश थे कि 2030 तक इसको लागू किया जाए, लेकिन अच्छी शिक्षा पद्धति और शिक्षा हमारे जीवन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हमने तय किया कि न्यू यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको 2030 तक नहीं, हम हरियाणा में 2025 तक लागू कर देंगे। इसके जितने प्रावधान हैं उन सबको हम लागू करने जा रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो अन्य कोई प्रकार की जितने भी शिक्षा के हमारे आयाम हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। आयुर्वेद में भी पूरे प्रदेश में, चाहे वो कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र का हो अथवा अन्य स्थानों पर हो, इसको बहुत हम प्रमोट कर रहे हैं। ये ठीक है, चिकित्सा पद्धति में आज कई पद्धतियां हैं, चाहे वो आयुर्वेद की है, चाहे वो एलोपैथी की है, आयुष में और बहुत सी पद्धति हैं, सबका विकास करना जरूरी है। हम एलोपैथी के अंदर जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनको भी बड़ी संख्या में और फैला रहे हैं। 2014 में केवल 750 MBBS के डॉक्टर थे जिनको एडमिशन हरियाणा में मिलता था। आज वो बढ़कर के 1700 हो गए हैं। 1700 मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS को एडमिशन मिलता है। और जितने नए मेडिकल कॉलेजेस की हमने घोषणा की है, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 4-5 साल के बाद जब सब जिलों में मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे, 3050 ऐसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हमारे प्रवेश करेंगे। अब ये एक बढ़ता हुआ क्रम है। इसी क्रम में आयुर्वेद में भी पंचकुला में एम्स आयुर्वेद का अलग से ये खुलने जा रहा है। हम गांव-गांव में आयुष के ऐसे केंद्र बना रहे हैं। अब क्या है कि इन दोनों पद्धतियों में थोड़ा सा आपस में विरोधाभासी लोग भी पैदा करते हैं, विरोधाभास करते हैं। खास करके अब इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एलोपैथी के कुछ डॉक्टर्स वो अपने आप को सुप्रीम मान करके और आयुर्वेद को कैसे नीचे दिखाना है, ये कोशिश हमेशा रहती है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के कारण से देश का स्वास्थ्य, देश के लोगों का स्वास्थ्य, आयुर्वेद की विशेषता यह है कि उसकी आयु लंबे कैसे हो मानव शरीर की, बीमार न पड़े। एक प्रकार से बीमारी का शुरू में ही रोकना, बीमार की रोकथाम करना, ये आयुर्वेद का पहला काम है। जबकि एलोपैथी बीमार होने के बाद शुरू होता है, वो इलाज पर आगे बढ़ते हैं। बीमारी नहीं होगी तो इलाज की जरूरत क्या है। इसलिए पहला काम ही है कि निरोधक, यानी बीमारी जो है ना आए, इस निरोधक विद्या को हम आगे बढ़ाएं। हम एक और प्रयत्न कर रहे हैं, एक हमने समिति बनाई है कि इन दोनों पद्धतियों का समन्वय कैसे बढ़े।
और समन्वय बैठा करके दोनों की शिक्षा एक साथ एक डॉक्टर आकर के ले, चाहे उसके लिए हमको नई डिग्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन एक साथ जिसमें एलोपैथी भी हो, जिसमें आयुर्वेद भी हो, जिसमें यूनानी भी हो, जिसमें होम्योपैथी भी हो, सिद्धा भी हो, सब पद्धतियां। योग तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में विश्वविख्यात कर दिया है कि योग जब अब सब लोग करने लग गए हैं और उस योग की बहुत बड़ी एक हमको लाभ मिलने लगा है। तो मैं आज इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि आज थोड़ा देरी भी बहुत हुई और हम तो वास्तव में उपराष्ट्रपति जी को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं यही अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहूंगा कि इस पद्धति के माध्यम से हमारी चिकित्सा पद्धति को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। किसी के पास भी किसी प्रकार का कोई सुझाव होता है, हमको मिलता है, हम उसको पूरा काम करते हैं। आज पुनः जो भी आज विद्यार्थी जिनको डिग्रियां मिली हैं, जिनको पदक मिले हैं, ऐसे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। अब मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया आप दीक्षांत संबोधन प्रस्तुत करें। प्लीज सर। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर माफी फॉर बीइंग वेरी लेट। Circumstances were beyond our control. हेलीपैड पर समय से पहले पहुंच गया था कि जितना जल्दी पहुंचो उतना ठीक रहेगा। मौसम ने साथ नहीं दिया, सड़क के रास्ते से आया, पैदल चलकर आता तो भी इसकी तरह। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी खट्टर, श्री महेंद्र बालकनाथ योगी जी, मेंबर पार्लियामेंट एंड चांसलर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, चौधरी कंवरपाल जी, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा, डॉक्टर अंजना राव, प्रो चांसलर बीएमयू, डॉक्टर आर.एस. यादव, वाइस चांसलर बीएमयू, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रामचंद्र जागड़ा जी, कृष्ण कुमार जी, वाइस चांसलर एमडी यूनिवर्सिटी राजवीर सिंह जी, वैद बहुगुणा त्रिगुणा जी, distinguished members present in the audience and my dear students. उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली यात्रा हरियाणा में हो और यादगार हो। यात्रा की शुरुआत सहयोग से और बहुत सही तरीके से दीनबंधु सर छोटू राम जी की पावन भूमि सांपला से हुई। चौधरी साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आफ्टर ऑफरिंग फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू legendary Sir Chotu Ram ji, I am feeling motivated, inspired, and blessed to be ever in the service of our great land, Bharat. हरियाणा की भूमि साहसी वीरों की धरती है। यह योगेश्वर कृष्ण की गीता की भूमि है, जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के योग का उपदेश है। मैं ये सब मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। यहाँ के किसान और जवान ने सदा देश का गौरव बढ़ाया है और इसमें हमारे खिलाड़ियों का नाम भी अब जुड़ गया है, जिन्होंने देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। राष्ट्र की सुरक्षा में चाहे अन्न की सुरक्षा हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, द कंट्रीब्यूशन of people from this state exemplifies highest degree of patriotism. मातृभूमि के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे
नहीं हटी। ऐसी पावन भूमि में ऐसे मौके पर I take it as a privilege and honor to be associated with the third convocation celebration of prestigious Baba Masnath Vishwavidyalaya. I am grateful to Honorable Member of Parliament and Chancellor Balaknath ji for affording me this great opportunity. Dear students, I am a product of education. I know what education can do. Education alone is equalizer. Education alone brings about transformation. And convocation is a major milestone. My congratulations to 2,145 students who have been blessed with degrees today. This is a very special occasion for you, for your parents, for your teachers, and for the society at large. It is reward of your hard working, result of what you had aspired. It's a turning point in your life because now you will be taking big leap in the larger world. From here you carry message of your university to contribute to the nation and the society at large. यह दीक्षांत समारोह आपके जीवन का सदैव एक महत्वपूर्ण अंग रहेगा। India is on the rise as never before. The rise of India is unstoppable. You are walking into a new world which is full of opportunities. India, my dear students, is now a global land of opportunity and investment. Only a few months back, India became the 5th largest economy in the world, overtaking our colonial rulers. And by the end of the decade, we will be 3rd largest. I can tell dear students, because many of you will be contributing hugely to growth of economy. India has created more unicorns than China in the first half of 2022. What a great achievement for India. आज के दिन एक ऐसा वातावरण बन गया है, सरकार की नीतियों की वजह से एक ऐसा इकोसिस्टम अवेलेबल है where every young person is allowed to exploit his or her talent to the fullest advantage. ये मौका पहले नहीं था। मुझे वो दिन याद है 1979 में 6,000 रुपये का लोन लेने के लिए मैं एक बैंक के पास गया था ताकि मैं वकालत की लाइब्रेरी बना सकूं। मैनेजर ने मुझे मदद की। आज के दिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते, नवयुवक के पास विचार है तो पैसा उसके लिए संकट नहीं है। राज्यसभा के सांसद बताएंगे तो अनुभवी हैं, माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे 1989 में मैं सांसद था, 50 गैस कनेक्शन मिलते थे एक एमपी को, वो उसकी ताकत होती थी। वर्तमान सरकार ने 18 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, दुनिया के अंदर कहीं भी इसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। मैंने खुद देखा है 1 अप्रैल 2020 से जब मैं राज्यपाल था पश्चिम बंगाल का,
80 करोड़ से ज्यादा जनता को जो आज तक प्रक्रिया चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे, फ्री फूड इज बीइंग मेड अवेलेबल। दुनिया का कोई देश इस प्रकार के अचीवमेंट को नहीं बता सकता। 80 crore people have been fed and are being fed free food from 1st April 2020. कौन सा देश है जो कहेगा कि 136 करोड़ लोगों को 2 बार वैक्सीनेशन लगा दिया और बूस्टर भी लगा दिया? ऐसी परिस्थिति में जब हमारी ग्रोथ स्टोरी इतनी जबरदस्त है, कुछ लोग इसका आनंद क्यों नहीं लेते? ये आपके लिए सोचने का मामला है। यू आर थिंकिंग माइंड्स, यू आर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। मैं इस दौर से गुजरा हूं। यदि अगर क्वालिटी एजुकेशन मुझे नहीं मिलता, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हो सकता है मेरे जीवन का मोड़ कुछ और होता। जब मुझे बालकनाथ जी ने बताया और मैंने खुद जानकारी ली कि सेल्फलेस तरीके से विद कमिटमेंट एंड डायरेक्शन एजुकेशन इज बीइंग इम्पार्टेड हियर, और मेरे खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा सैनिक स्कूल का पूर्व छात्र होने के नाते कि यहां एक सैनिक स्कूल की स्थापना भी हो रही है। चौंतीस साल बाद एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। You cannot imagine the kind of deliberations and interactions that went into evolution of this policy. We have a vice chancellor there and vice chancellor here. They are fully aware of it. इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? हम वर्तमान शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार हों, मातृभाषा को बल दें, भारतीय मूल्य और संस्कृति को ध्यान में रखें, और एक क्रांतिकारी नीति है जिसके बदलाव नजर आ रहे हैं। जब मैं यहां आया, इंद्रदेव की बड़ी कृपा हुई और अंदर जब देखा कुछ प्रेजेंटेशंस, मुझे मेरे दिन याद आ गए। हमें सैनिक स्कूल के अंदर वर्कशॉप में दिखे जाते थे, हम साइंस का काम करते थे। I could see boys and girls, passion and mission in their eyes, sparkle. समय पूरा नहीं दे पाया, but I was greatly touched कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो ऑथेंटिक है। जो कुछ हो रहा है that is only with one motivation and welfare of the student community. I will make one special request to all my friends, boys and girls. हम इस बात का बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे राइट्स क्या है। भारत के संविधान ने उनको पूरी तरीके से उल्लेखित किया है। We call them fundamental rights. I will appeal to you to take a pledge from this place today that we will give great emphasis to fundamental duties also. यदि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनका पालन करना आसान है और उसके नतीजे बड़े जबरदस्त पॉजिटिव आएंगे। स्वच्छ भारत अभियान का एक उदाहरण देता हूं। आज के दिन हम स्वच्छता के लिए बहुत पर्टिकुलर हैं, और एक जमाना था गाड़ी के अंदर केले का सेवन किया तो छिलका तुरंत बाहर फेंकते थे। ये हमारा अधिकार समझते थे। कोई भी चीज है फट बाहर फेंक दो, पर किसी भी भारतीय ने
विदेश में ऐसा काम नहीं किया। सोचिए, वातावरण बदला है। यदि अगर हम डिसिप्लिन दिखाना चालू कर देंगे तो देश में जो बदलाव हो रहा है, हम उन भ्रामक शक्तियों को कुठाराघात कर पाएंगे जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म एडवर्स इंपैक्ट डालना चाहते हैं। एंड आई हैव नो डाउट द पावर टू चेंज, द पावर टू ट्रांसफॉर्म, द पावर टू गिव रिजल्ट्स, द पावर टू गिव नेशन अ न्यू स्टेटस is with the boys and girls before me. And I am sure you will spare no effort to be in the service of our great nation, Bharat. I will appeal to you, and I will say it for a long time, because हमारे हजारों साल की संस्कृति के अंदर वो बातें निहित हैं। Love and respect your parents, elders and teachers. आसान है कहना, सुनना भी आसान है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है। मैं खास तौर से आपको अनुरोध करूंगा, जब मामला आपके पेरेंट्स का हो, बुजुर्गों का हो, गुरुजनों का हो, डोंट बी जजमेंटल। हमारे यहां एक प्रवृत्ति आजकल आ रही है कि हम किसी के दूसरे विचार को तो सुनेंगे नहीं। My way is the right way. My way is the only highway. हम भूल जाते हैं कि such a highway is a highway to disaster. आपको पता लगेगा अनुभव के आधार पर कि कई बार जब आदमी दूसरा मत व्यक्त करता है और आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आपको पता चलेगा वो सही विचार व्यक्त कर रहा था। And always keep national interest uppermost. मैं क्यों कहता हूं, आज के दिन हम आर्थिक कैपेसिटी के हिसाब से दोहन करने लगे। पेट्रोल हो, एनर्जी हो या कोई भी संसाधन हो, आई एम यूजिंग इट बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम ट्रस्टी हैं, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, उसका उपयोग उतना करें जितनी हमारी जरूरत है। वी कांट यूज दिस रिसोर्सेज बिकॉज वी कैन अफोर्ड। इस संस्कृति को कुंठित आप लोग कर सकते हैं जो लोग एक्सेसिव कंजम्पशन को दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्पीक योर माइंड, हैव नो टेंशन, नो स्ट्रेस। मैं बहुत टेंशन में रहा। मैं क्लास में सदा नंबर 1 आता था। मुझे डर लगता रहता था बालगांव जी, मुख्यमंत्री जी, कि मैं नंबर 2 आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। बहुत बाद में पता लगा कि बहुत कुछ होता नहीं है। नंबर 2 आता तो खेल का कुछ समय मिलता था, दोस्तों से चर्चा कर लेता, व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा ग्रहण कर लेता। एंड देयरफॉर बी फ्री फ्रॉम टेंशन एंड स्ट्रेस, डू योर वेरी बेस्ट। आपकी टैलेंट आपको कहां ले जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं, शायद आपको। आजकल तो थोड़ा बहुत बदलाव आया है। हरियाणा की भूमि को चरितार्थ करती है, वरना एक जमाना था कि जो लड़का लड़की खेल में रुचि रखते थे, आंखों में खून उतरता था। पढ़ते क्यों नहीं हो, खेल में क्यों जाते हो? और हरियाणा का नतीजा देख लो, खेल भी एक प्रतिभा है, कितना आगे देखो। Your talent can find way like a river in any form. Never compromise on that. Be innovative. मैं क्यों कहता हूं?
I'll quote from Einstein. Einstein ने कहा था, I quote, anyone who has never made a mistake has never tried anything new, unquote. अरे बच्चा भी जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, and that child controls the destiny later on. Never hesitate to engage into something new, innovative, irrespective of the result. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि इस प्रतिष्ठान में अनुशासन और देशभक्ति का संचार हो रहा है, निरंतरता से होता रहेगा. It shall ever be on incremental trajectory. राष्ट्र निर्माण के लिए यह जरूरी नहीं है, यह एसेंशियल है, ऑप्शनल नहीं है, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है. नो नेशन कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ दीज ट्विन्स. विश्वविद्यालय का जो आदर्श वाक्य है, जिसके ऊपर चांसलर बालकनाथ जी ने कहा है, विधेयम जन सेवनम, मैं मानकर चलता हूं आप सब लोग अपने कार्यकलापों से इसको सार्थक करेंगे. मेरे को जानकारी मिली है, मैंने महसूस किया है और आप लोगों ने उसका अभिवादन किया है कि यह ध्येय नहीं है इस संस्थान के संस्थापकों का, यहाँ के शिक्षकों की दशकों वर्षों की तपस्या का परिणाम है, उनका निचोड़ है. गुरु ऋण का तो निर्वहन करना ही पड़ेगा, और गुरु ऋण का मतलब है गिव बैक टू द सोसाइटी. गुरु कभी भी नहीं चाहता कि आप उसको कुछ दो, बट गुरु हमेशा चाहता है कि मेरा शिष्य इतना प्रतिभाशाली बने कि मैं जहां भी समाज में बैठूं, जहां भी किसी से कोई बात सुनने लगे, यस, एंड देयरफॉर टू गिव बैक टू द सोसाइटी इज योर प्राइम ऑब्लिगेशन. मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करने में आदर्श प्रस्तुत करेंगे. अनेक शुभकामनाओं के साथ आपको व आयोजकों का आभार और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे निर्वाचन के तुरंत पश्चात आपने कहा कि हरियाणा आना है और मेरे को बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी दिया कि इसकी शुरुआत इसी इलाके से करनी है. और जहां मैंने आज शुरुआत की, सर छतुराम की प्रतिमा के यहाँ नमन कर कर, श्रद्धा सुमन प्रस्तुत कर और आशीर्वाद लेकर, इससे अच्छा सहयोग हो नहीं सकता. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम जी. हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका कर्तव्य ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार. अब मैं निवेदन करूंगी हमारे परम पूजनीय कुलाधिपति महेंद्र बालकनाथ योगी जी से, कृपया वह आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का सम्मान करें. Now,
honor respected Dr. Sudesh Dhankad ma'am. अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे परम सम्माननीय कुलाधिपति महेंद्र बालकनाथ योगी जी से कि वे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी को सम्मानित करें। Now, I request to Honorable Chancellor Sir Mahendra Balaknath Yogi ji to honor respected Chaudhry Kanwarpal ji, Education Minister of Haryana. Thank you, sir. Now I request to Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly raise a vote of thanks for today's ceremony. So after successful completion of this auspicious ceremony, it is a matter of proudness for me to present vote of thanks for the chief guest, for the dignitaries on dais, and for the dignitaries present in the hall. And with this, I also request the Honorable Chancellor to declare the convocation closed. Honorable Chancellor, sir. Thank you. Thank you. कार्यक्रम अंतिम चरण पर है। इस चरण के लिए राष्ट्र का अभिनंदन आवश्यक है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जा